So myself Abhijit Banerjee, your physics teacher, and already I have discussed about the basic concept of circular motion, and I have covered average velocity, instantaneous velocity, average angular velocity, instantaneous angular velocity, and today I will cover this topic here as shown in this board: angular acceleration, uniform circular motion and non-uniform circular motion. Okay. So let's start with the angular acceleration. This one, angular acceleration. So already I have told you that you have to compare the angular part with the velocity part. Okay, it means you have to compare angular velocity with the linear velocity, and you have to compare angular acceleration with the linear acceleration. Okay. But in case of velocity, simple velocity, जब मैं simple velocity लूंगा, simple linear velocity, तब acceleration का definition क्या होता है? Change in velocity per unit time और rate of change of velocity होता है ना? Simple, जैसे simple क्या करते हैं हम लोग? जैसे यहाँ पर एक बॉडी है, उसका वेलोसिटी है v1, और एक बॉडी है, उसका वेलोसिटी है v2, एंड टाइम इंटरवल सपोज del t. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लीनियर एक्सेलरेशन? टेल मी. मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन del t. दिस इज द वैल्यू ऑफ द लीनियर एक्सेलरेशन. हाँ बेटा, यही पता था ना मुझे, लीनियर एक्सेलरेशन फॉर लीनियर मोशन. नाउ टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द एंगुलर एक्सेलरेशन. Angular acceleration, what is the definition of the angular acceleration? Definition of the angular acceleration is the rate of change of angular velocity of a particle is called angular acceleration. Rate of change of angular velocity of a particle is called angular acceleration. Rate of change of velocity of a particle is called linear acceleration. Now see this change, angular velocity, rate of change of angular velocity. Now what will be the expression? Basically is denoted by alpha, is denoted by alpha, angular acceleration denoted by alpha. Okay. Now again here you have to consider circular motion in place of linear motion. So what you have to do in case of circular motion? When a body moves in a circular path, when a body moves in a circular path, then what happens? This one is a radius r. Here is the angular velocity. Suppose initial angular velocity is omega 1. Okay. Already I have told you about the angular velocity. Okay. Angular velocity is, what is the basic definition of the angular velocity? Tell me. Angular displacement per unit time. Okay. So initial angular velocity is omega 1. After a time del t, now angular velocity is omega 2. So what is the change of angular velocity? Change in angular velocity here, tell me. Omega 2 minus omega 1, just similar like this one. Change in velocity v2 minus v1. Change in angular velocity omega 2 minus omega 1. Final minus initial, it will be change, and time interval del t. So what will be the magnitude? Is which is omega t minus omega 1 upon del t. This is the value. Clear better? Okay. This is the way you have to find out the value of the alpha. Alpha is called what? Beta? Alpha is called angular acceleration. A is linear acceleration. Okay. Simple thing. Here change in, now change in angular velocity upon time interval. Okay. Now next question is that already I have told you about these two terms. आशा करता हूं तुम लोगों को याद है दोनों टर्म. एक है एवरेज वेलोसिटी, एक है इंस्टेंटेनियस, सॉरी एक है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एक है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी. किसी इंस्टेंट में अगर मैं किसी एंगुलर वेलोसिटी को मेजर करता हूं, दिस वन इज ए इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी. मैंने एग्जांपल भी दिया था, ठीक ना. और एवरेज, अगर मैं लार्ज टाइम स्केल में किसी चीज को मेजर करता हूं,
टाइम स्केल को मैंने बहुत लार्ज ले लिया, देन इट विल बी व्हाट, it will be average. Similar in case of angular acceleration, in case of acceleration also there, linear acceleration, and in case of angular acceleration also we have average and instantaneous. We have both, दोनों ही मेरे पास होगा, just like a angular velocity. Angular velocity के जैसा, जैसे angular velocity में दो थे, average और instantaneous. Angular acceleration में वही चीज है, एंगुलर एक्सेलरेशन में वही सेम चीज है, ठीक है. एवरेज, तो एवरेज के लिए क्या करना है, मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं, जब तुम किसी चीज को लार्ज टाइम इंटरवल के लिए कंसीडर करोगे, जब तुम किसी चीज को लार्ज टाइम इंटरवल के लिए कंसीडर करोगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इंटरवल बहुत ज्यादा है, बेटा बोलो क्या हो जाएगा वो, मैंने बोला था अगर टाइम डिफरेंस बहुत ज्यादा है, टाइम इंटरवल, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ चेंजेस, चेंज होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है. एग्जाम्पल दिया था ना, जैसे जर्नी फ्रॉम 10 to 11 एंड विद इन दिस जर्नी देयर इज एन चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज हो रहा है एक कार का, तो देयर शुड बी सम एवरेज वैल्यू, यू हैव टू कंसीडर एवरेज वैल्यू. सो जब तुम्हारा लार्ज टाइम इंटरवल के लिए तुम जब कोई चीज को कंसीडर कर रहे हो, सो यू हैव टू कंसीडर एवरेज. अब तुम किसी इंस्टेंट में, एग्जाम्पल दिया था डेल टी इक्वल टू पॉइंट, याद करो 0.001 सेकेंड, वो एग्जाम्पल में मैंने क्या किया था, अगर टाइम इंटरवल मैंने बहुत कम लिया, सोचो बहुत ही कम है, तो मुझे कंसीडर करना पड़ेगा किसी इंस्टेंट में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. हियर इज आल्सो द सेम थिंग. अगर तुम इसका एवरेज निकालता रहे हो तो ये डेल टी बहुत, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस सोचो T2 माइनस T1 है, ठीक है. यहां पर T1 था, सोचो यहां पर T1 है और यहां पर T2 है. यहां पर टाइम था T1 जब इसका एंगुलर वेलोसिटी से ω1, यहां पर जब एंगुलर वेलोसिटी ω2 हो रहा है, टाइम हो रहा है T2, तो तुम क्या लिख सकते हो, टाइम इंटरवल T2 माइनस T1. ये सोचो बहुत लार्ज है, मैं पकड़ ले रहा हूं, ये टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा है, तो इट विल बी, टेल मी बेटा, इट विल बी एवरेज. मैंने कल बोल दिया था. अब ये कब ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस, बोलो बेटा, अच्छा फटाफट बोल दो, इंस्टेंटेनियस कब हो जाएगा, अल्फा, इसे कर लो इंस्ट, लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, अल्फा लिखो, ठीक है. अब क्या लिखो बोलो, लिमिट पढ़े होंगे ना शायद, लिमिट डेल टी टेंस टू 0, मतलब डेल टी टाइम इंटरवल टेंस टू 0, मतलब 0 के करीब है, मैंने कल समझाया था 0 के करीब है, तो इट विल बी डेल ओमेगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन डेल टी टाइम इंटरवल. ओके, क्लियर है बेटा, कल का ही चीज है, सिर्फ यहां पर वो डेल थीटा अपॉन डेल टी था एंगुलर वेलोसिटी के केस में, और इस अल्फा में डेल ओमेगा अपॉन डेल टी. ओके, सो इट विल बी, क्या लिख सकते हो, डी ओमेगा अपॉन डी टी. दिस अल्फा इज ए इंस्टेंटेनियस अल्फा वैल्यू. ओके, तो पूरा चीज क्लियर हो गया. व्हाट डू मीन बाय इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी एंड व्हाट डू मीन बाय एंगुलर एक्सेलरेशन. ठीक है, पूरा चीज क्लियर है तुम्हारा, इस कंसेप्ट को पूरा क्लियर कर लिया. ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं. ठीक है, सो बेटर होगा मैं अगर इसी कॉन्सेप्ट को लेकर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करूं. ओके, अब देखो ये न्यूमेरिकल मैं सॉल्व कर रहा हूं, देन आई विल कम बैक टू दिस पार्ट, द टेंजेंशियल कंपोनेंट एंड द रेडियल कंपोनेंट. ओके, तो मैं ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने का कोशिश करता हूं. ये न्यूमेरिकल देखो, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय q इक्वल टू दिस वन. तो q यहां पर दिया हुआ है tq प्लस t स्क्वायर प्लस t प्लस 1. This is the value of the what angular displacement. Basically angular displacement को हम थीटा से थीटा 2 माइनस थीटा 1 करके डेल थीटा से रिप्रेजेंट करते थे ना, बट हेयर इज सिंपली डिनोटेड बाय q. ठीक है, ये देख लेना, टर्म को पढ़ लो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ओके, नाउ फाइंड आउट एंगुलर वेलोसिटी. अब देखो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन में तुम्हें फाइंड आउट द एंगुलर वेलोसिटी बोला गया है, ये तुम्हें बोला गया है
एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो यहां पर तुम कौन सा एंगुलर वेलोसिटी कंसिडर करोगे, इंस्टेंटेनियस और एवरेज? टेल मी फर्स्ट। एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, तुम्हें टाइम का पर्टिकुलर इंस्टेंट बोल दिया है, मैंने कल एग्जांपल से भी समझाया था, तो बोला एट 10:30, 10:30 बजे तुम्हारा क्या एंगुलर वेलोसिटी है, तो कौन सा? सीधी सी बात है, इंस्टेंटेनियस। आया समझ में? तो उसका फॉर्मूला क्या था, फटाफट बोल दो, याद करो क्या फॉर्मूला था एंगुलर वेलोसिटी का, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी था ना, ऐसा कुछ था। यहां पर थीटा तो क्यू है ना बेटा, तो यहां पर क्या लिखना है, डी क्यू बाय डी टी। ओके, डी क्यू बाय डी टी लिखना है, पड़ता है ना, डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, चलो ये तो मैंने लिख लिया सर। बोला था ना, इफ लिमिट डेल टी टेंस टू 0, याद करो, डी डेल क्यू अपॉन डेल टी इज कन्वर्टेड इनटू ए डी क्यू अपॉन डी टी। व्हाट इज दिस? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अब तो सिंपल डेरिवेटिव करना है, कुछ बड़ा इशू नहीं है। डी डी टी ऑफ दिस वन टी क्यू प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यू प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। करो डेरिवेटिव करो, और टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड बिठा देना आफ्टर डेरिवेशन। क्या होगा बोलो जल्दी से, 3t स्क्वायर होगा ना। इसका डेरिवेटिव करोगे तो इसका फटाफट कर दो, बहुत ही सिंपल है, 2t, इसका 1, और 1 इज ए कांस्टेंट, तो ऑब्वियस थिंग इज 0। अब t के जगह क्या पुट करोगे, अब t के जगह क्या पुट करोगे, ये तो मेरा एंगुलर वेलोसिटी आ गया बेटा। ठीक है, अब t के जगह क्या पुट करोगे, t के जगह पुट करोगे 2। ये सुनो, देखो एट t इक्वल टू 2 सेकेंड बोल दिया है तुम्हें, ये तो तुम्हारा एक्सप्रेशन आ गया इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का, और द फंक्शन ऑफ टाइम के फंक्शन में, टाइम एज ए दिस ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दिस इक्वेशन। तो अब टाइम के फंक्शन तो हो गया, अब टाइम का वैल्यू पुट करना है, पुट करो 3 इंटू टी इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 हो गया ना। तो 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 3 12, 2 इंटू 2 4 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा बोलो, 12 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 1 विच इज 17। अब क्वेश्चन है सर इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट बोल दो फटाफट। थीटा बाई टी, थीटा का यूनिट क्या होता है बेटा, थीटा का यूनिट होता है, इसमें टर्म में लिखूं, रेडियन। ओके, थीटा का यूनिट में किसमें टर्म में लिखूंगा, रेडियन के टर्म में। ठीक है, ये रेडियन सोचो, रेडियन के टर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, टी मीन सेकेंड, इट विल बी रेडियन पर सेकेंड। ओके, क्लियर, पूरा चीज क्लियर हो गया। अब मुझे क्या निकालने को बोला है, एंगुलर एक्सेलरेशन। कैसे निकालें एंगुलर एक्सेलरेशन, बोलो फॉर्मूला, अभी तो मैंने बोला तुम लोगों को, अल्फा। बोलो, ये पहले बोल दो, ये एवरेज होगा और इंस्टेंटेनियस होगा। सर एवरेज तो नहीं होगा, क्योंकि ये लार्ज टाइम स्केल के लिए ही बोला गया है, एट एनी इंस्टेंट बोला गया है, t इक्वल टू 2 सेकेंड, एक इंस्टेंट में बोला गया है। तो सर ये तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन ही होगा। बढ़िया, तुम लोग एकदम सही पकड़े। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बोलो, डी ओमेगा अपॉन डी टी। ओके, अब इसका डेरिवेटिव, ओमेगा मुझे कहां आया, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, तो डी डी टी ऑफ क्या हो जाएगा, फटाफट बोल दो, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 हो गया। क्लियर है, सिंपल डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव कर लो, कितना आएगा, फटाफट बोलो, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, फटाफट बोल दो, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा,
60, ओके 60 सही बोला, प्लस 2, ओके 2 एंड 1 का तो 0 होगा, फिर से t की जगह 2, तो 6 इंटू 2 12 प्लस 2 14, ओके सो इट विल बी 14 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. वाई सर, वाई द यूनिट लाइक दिस? अरे भाई अल्फा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा बाई टी, तो ओमेगा इज रेडियन पर सेकेंड, थीटा बाई टी, ओके बाई सेकेंड. जस्ट लाइक ए, याद करो लीनियर एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जस्ट लाइक दैट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. अब तुम्हें पूरा चीज आई थिंक समझ में आ गया है. ओके ये है तुम्हारा पूरा चीज, ठीक है. तो मेरे पास अगर किसी भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मेरे पास अगर उसका टाइम फंक्शन है, समझ में आ रहा है ना, मेरे पास उसका वो अगर फंक्शन ऑफ टाइम है, देखो ये टाइम का एक फंक्शन है, तो क्या होगा, तो मुझे अगर उसका इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, तो सिंपल यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, डी थीटा अपॉन, यहां पर क्यों था, डी थीटा अपॉन डी टी एंड डी ओमेगा अपॉन डी टी. क्लियर है? दिस होल पार्ट इज क्लियर. अब जो मैं नेक्स्ट टॉपिक जो इसके ऊपर डिस्कस करना चाहता हूं, नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल और टू सॉल्व टू ट्रांसफर वन क्वांटिटी टू अनदर क्वांटिटी, कुछ रिलेशन का मुझे ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, कुछ रिलेशन का मुझे ज़रूरत पड़ता है, वो रिलेशन मैं पहले थोड़ा सा सेट कर लूँ. इट इज अ रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. मतलब अभी तक तुम लोगों को मैंने एक चीज थ्रू आउट द लेक्चर मैं क्या कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं. किसके साथ किसका कंपेयर कर रहे हैं सर? कंपेयर कर रहा हूं सर लीनियर वेलोसिटी के साथ एंगुलर वेलोसिटी को कंपेयर कर रहा हूं ना. देखना थ्रू आउट द, इसका एवरेज वेलोसिटी ले रहा हूं, इसका एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ले रहा हूं, ठीक है, इसलिए इसके लिए काउंट कर रहा हूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. उसमें देखो कुछ कनेक्शन सिमिलरिटी है, सो देयर शुड बी सम रिलेशन आल्सो. कुछ रिलेशन तो होगा सर, जरूर रिलेशन है. ओके सो रिलेशन सर क्या है, ठीक है. और एक चीज जो मैं थोड़ा सा स्किप कर गया, थोड़ा सा मुझे चाहिए तुम्हारे साथ डिस्कस करने के लिए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन. बेटा मैं प्रीवियस स्लाइड में नहीं जा रहा हूं, मैं तुम्हें ये तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन है सर. ऑलरेडी यू टोल्ड मी दैट डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी यू हैव टू यूज राइट हैंड थंब रूल व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. इट्स ओके सर, नो प्रॉब्लम. इफ ए बॉडी मूव्स इन ए circular path and direction it's along the axis of the rotation is perpendicular to the plane, it's okay, no problem sir. But next question is that sir what is the direction of the angular acceleration. ये क्वेश्चन है. तो ये क्वेश्चन करने से पहले तो मैं थोड़ा सा इसका रिलेशन निकाल लेता हूं, then we come back to this question that what is the direction of the angular acceleration, and also we'll discuss the direction of the angular velocity. Again I will discuss, और डिस्कशन मैं करूंगा एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन को लेकर और एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन को लेकर. तो पहले एक रिलेशन निकालते हैं. इस डायग्राम को बढ़िया तरीके से कल मैंने इसके लिए थोड़ा सा तुम्हें ओवरव्यू दिया. क्या ओवरव्यू इस डायग्राम के ऊपर मैंने दिया था कल? मैंने बोला था कि सोचो एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है. बहुत अच्छा सर, वेट. एक बॉडी यहां पर सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है.
ऐसे देखो, इसको इस डायग्राम को देखो, बढ़िया डायग्राम है। देखो मैंने कल भी क्या बोला था, अगर तुम थीटा बहुत ज्यादा लोगे, थीटा इट मीन्स थीटा इज बेसिकली एंगुलर पोजीशन एंड डेल थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, अगर तुम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा होगा तुम्हारा, ठीक है, अच्छा मैंने कल समझाया था ना, एक पोजीशन ऐसा था, इसमें तुमने ज्यादा मूव कराया, अगर एंगुलर पोजीशन बहुत, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा लिया फॉर ए पर्टिकुलर लार्ज टाइम, अब ज्यादा कब होगा, जब तुम्हारा टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा होगा, तब तुमने ज्यादा एंगल क्रिएट किया होगा। शायद मैं पकड़ ले रहा हूं तुम्हारा टाइम इंटरवल ज्यादा से, तुम ज्यादा एंगल क्रिएट कर रहे हो, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर ज्यादा होगा तो यू कांट से दिस वन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तुम बोल नहीं सकते, क्योंकि वो वेक्टर को कम्यूटेटिव रूल जो होता है P प्लस क्यू इक्वल टू क्यू प्लस पी, ये रूल फॉलो नहीं कर रहा था। समझ में आ रहा है? ये रूल फॉलो नहीं कर रहा था। तो सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन नहीं है, तो सर एंगुलर वेलोसिटी का भी डायरेक्शन नहीं है सर, फॉर ए लार्ज टाइम इंटरवल के लिए और फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ डेल थीटा के लिए। ठीक है, कल मैंने समझाया था रूल फॉलो नहीं कर रहा था। तो सर ये इसका डायरेक्शन कैसे निकालूं, मैंने कल ही समझाया था, जब तुम टाइम इंटरवल बहुत कम लोगे या बहुत कम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लोगे, कल समझाया था ना इससे, जो बहुत कम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर तुम लोगे तभी ये कम्यूटेटिव रूल वेक्टर का फॉलो कर रहा है, तो ये वेक्टर का रूल फॉलो कर रहा है, तो दिस यू कैन से दिस वन इज ए वेक्टर, you can say this one is a vector if angular displacement is a vector। अब angular displacement अगर वेक्टर हो गया तो angular velocity का तुम डायरेक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, अब यही तुम देखो यहां पर यही चीज दिखा रहा है, देखो d थीटा लिया हुआ हूं, जब भी मैं टर्म d थीटा यूज कर रहा हूं, दिस एंगल इज वेरी स्मॉल। मैंने इंस्टेंटेनियस में किया था ना, इंस्टेंटेनियस में d क्या किया था, d थीटा अपॉन dt, ओके, व्हेन डेल t लिमिट डेल t टेंड्स टू 0 के बराबर है डी थीटा, तो ये वेरी स्मॉल एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो सिमिलर अब देखो, अगर ये एक बॉडी का ये एंगल, अगर सोचो बॉडी यहां पर से यहां पर आ गया, सोचो ये एंगल बहुत ही स्मॉल हुआ, ये एंगल बहुत स्मॉल हुआ, वेट, ये एंगल तुम्हारा बहुत स्मॉल हुआ, ठीक है, ये एंगल बहुत स्मॉल हुआ, ये एंगल अगर बहुत स्मॉल हुआ, तो यहां पर एक चीज, पहले एक चीज बेसिक चीज बोलो, एक बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो पहले यहां पर था, बहुत कम टाइम के लिए उसका थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, समझ रहे हो ना, रेडियस वेक्टर थोड़ा सा एंगल क्रिएट किया यहां से लेकर यहां तक, ये बहुत ही कम है, सोचो यहां पर विजिबल हो रहा है, ये बहुत ही कम है, सोचो ऐसा था, थोड़ा सा एंगल क्रिएट किया, थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा एंगल क्रिएट कर रहा है ये डेल टी टेंड्स टू 0 टाइम में, तो क्या होगा, अगर थोड़ा सा एंगल क्रिएट किया तो इसका जो ये आर्क लेंथ होगा, विच इज दिस वन इज आर्क लेंथ, ओके, ये लेंथ आर्क लेंथ, ओके, इसको मैं इससे समझाने का कोशिश करता हूं, दिस वन इज आर्क लेंथ, है ना बेटा, ये इसमें दिस लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये तुम्हारा लगभग लीनियर डिस्प्लेसमेंट है ना, ये वाला कल ही समझाया था मैंने, ओके, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है ना वो, ठीक से बढ़िया से एक बार ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं, चलो तुम्हें इसके बारे में थोड़ा सा फील आ जाएगा, ठीक है, फील कराना है ना बेटा, चलो कराते हैं। देखो ये सर्कुलर मोशन में, ठीक है, क्लियर है, बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, अब ये और ये, ठीक है, अब ये कितना है तुम्हारा डी थीटा, इट इज वेरी स्मॉल एट डेल टी टेंस टू टाइम, और ये क्या हो जाएगा लगभग, ये बहुत छोटा होगा, तो ये जस्ट अगर तुम सीधी सी बात है, एक कर्व पाथ को, ऐसे कर्व पाथ को तुम जस्ट कंसिडर करो, ये बहुत छोटा है कर्व पाथ, तो ये जस्ट लुक लाइक ए स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, दिस वन इज ए
लीनियर डिस्प्लेसमेंट विच इज ds। आया समझ में? जस्ट लाइक सी दिस डायग्राम, लीनियर डिस्प्लेसमेंट ds ऐसे मूव कर रहा है ना। तो ये तुम्हारा d थीटा है, ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है? ds है। ओके क्लियर? लीनियर डिस्प्लेसमेंट ds है समझ में। और डी थीटा का डायरेक्शन ये दिखा रहा है, डी थीटा का डायरेक्शन इस तरफ। अब तुम पूछोगे सर इस तरफ क्यों है? तो कल का लेक्चर अगर तुमने बढ़िया से सुना होगा तो तुम्हें ये चीज पता चल जाएगा ये डी थीटा का डायरेक्शन इस तरफ क्या है, क्यों है। मैंने कल बोला था, कल बहुत कम टाइम इंटरवल में, बहुत कम टाइम इंटरवल में डी थीटा का डायरेक्शन होता है, थीटा का डायरेक्शन होता है। तो किस तरफ होता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जस्ट लाइक ए एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का डिस्टेंस किधर होगा? इस तरफ ही होगा। क्यों? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। ओके, डी थीटा अपॉन डी टी, तो इस तरफ है डी थीटा का डायरेक्शन। ओके समझ में? इस तरफ। क्लियर है पूरा चीज? समझ लो चीज पूरा क्लियर है। अब देखो ये था तुम्हारा डी थीटा का डायरेक्शन। मैंने कल एक और चीज बोला था, वो चीज को थोड़ा सा मैं उसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूं। कल जब बोला था कि जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो देखना मैंने क्या बोला था, इसका ये रेडियस है, इस पॉइंट में इसका वेलोसिटी सोचो v है, इस पॉइंट में वेलोसिटी v है, सोचो इस पॉइंट में भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसका, है ना। वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है सर? टेंजेंशियल होता है। बहुत अच्छा। अब ये मैंने बोला था कल, ये सेम एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। बॉडी सोचो, यहां पर एक बॉडी है, वो सेम एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सेम एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कल समझाया था ना। तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? उसका डायरेक्शन, अब देखो ये इस प्लेन में है, ये जो बॉडी इस प्लेन में मूव कर रहा है, प्लेन के ऊपर, समझ रहे हो ना, ऐसे। तो अगर इसका एंगुलर वेलोसिटी सेम है थ्रू आउट द जर्नी, समझो हम क्यों इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ले रहे हैं। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, सर एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन आपने बोल दिया है तो किस तरफ है सर? सोचो एक बॉडी ऐसे मूव कर रहा है, सोचो ये प्लेन के ऊपर है, जस्ट विजुलाइज दिस थिंग, प्लेन के ऊपर है, इस पॉइंट में वेलोसिटी इधर है, इस पॉइंट में वेलोसिटी इधर है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में वेलोसिटी का इस पॉइंट का डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन है, ठीक है। अब हर एक का इस पाथ का रेडियस है r, इट्स ओके सर। इसका एंगुलर वेलोसिटी सेम है, मैंने बोल दिया ये कंडीशन। एंगुलर वेलोसिटी अगर सेम है सर तो इसका सर डायरेक्शन किधर होगा? तो डायरेक्शन भी डिफरेंट लोकेशन के लिए सेम ही होना चाहिए, है या ना। अरे सिंपल सा चीज है, एंगुलर वेलोसिटी अगर सेम है तो इस पॉइंट के लिए एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होना चाहिए, इस पॉइंट में भी सेम होना चाहिए, इस पॉइंट में भी सेम होना चाहिए, इस पॉइंट में भी सेम होना चाहिए, है या ना। क्योंकि मैंने पहले ही एक चीज इंपोज कर दिया हूं कि इसका एंगुलर वेलोसिटी सेम है थ्रू आउट इट्स जर्नी। तो इस पॉइंट में क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी ये है, देखो इस पॉइंट में सोचो ये है, इस पॉइंट में सोचो ये है, इस पॉइंट में सोचो ये है। तो ये किस तरफ है? आउटवर्ड टू द प्लेन। ओके, आउटवर्ड टू द प्लेन। देखो तो अल्टीमेट एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन मैं क्या लूं? एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन मैं अगर आउटवर्ड टू द प्लेन को डॉट से रिप्रेजेंट करता हूं, मैंने ऐसे किया, इसका मतलब है ऐसे किया, इसका मतलब है डॉट आउटवर्ड टू द प्लेन। तो डायरेक्शन जस्ट लाइक दिस, along the axis of the rotation, along the axis of the rotation, this one is the direction of the angular velocity। क्योंकि ये अगर एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन हुआ, अगेन आई रिपीट, ये अगर एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन हुआ तो क्या हो जाएगा? तो हर एक लोकेशन के लिए, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के लिए एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम ही रहेगा। देखो इसके लिए भी वही, इसके लिए भी वही, इसके लिए भी वही, इसके लिए भी वही। तो मतलब यही है एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर है। अब समझ में आया? अलोंग द एक्सिस, इस एक्सिस के बराबर ये मूव कर रहा था, अलोंग द एक्सिस। आई थिंक पूरा चीज तुम्हें कल मैंने ये बताया था, ठीक है। आज थोड़ा सा मैं बोला थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं फिर से। ओके, अब तो बहुत ही ईजी है रिलेशन निकालना। देखो तुम, सिंपल है रिलेशन निकालना, बहुत ही ईजी है रिलेशन निकालना। अब तो मैं सब सीख ही लिया हूं, अब सिर्फ रिलेशन निकालना है मुझे, जो बहुत ही इजी है। देखो ये रब कर देता हूं क्योंकि ऑलरेडी मैं इसके बारे में डिस्कस
कर चुका हूं। ठीक है, जस्ट एक बार इसे विजुलाइज कराने के लिए मुझे ये चीज मैं फिर से इसे एक बार रिपीट कर दिया। तो ठीक है, तो देखो क्या बोला है, कंसिडर ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r एट टाइम t, लेट थीटा बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। मैं पकड़ रहा हूं थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, एंड इफ द पार्टिकल इज फर्दर डिस्प्लेस्ड थ्रू एन एंगल डेल थीटा इन टाइम इंटरवल डेल टी। ये तुम्हारा एक कंडीशन है, डेल थीटा इन टाइम इंटरवल डेल टी। तो मतलब क्या बोल रहा है, मुझे निकालना है रिलेशन बिटवीन द एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। तो कैसे निकालूं, देखो पहले एक काम करते, दोनों का पहले रिलेशन निकाल लेते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिलेशन निकाल लेते हैं। अगर उसको टाइम से मैं डिवाइड कर दूं तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज गोइंग टू बी लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम गिव्स अस एंगुलर वेलोसिटी। सो तो मेरा जो ये है एक, तो इस पॉइंट में सोचो ऐसा तुम्हारा डिस्प्लेस्ड हुआ, कितना डिग्री एंगल डिस्प्लेस हुआ, ये था, क्या पकड़ लो यहां, इसके हिसाब से पकड़ो या ठीक है थीटा जनरल टर्म, ये सोचो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है। इसे अगर सोचो, इसको मैंने एक रेफरेंस कल ही बोला था, इसको अगर रेफरेंस लाइन पकड़ लो, कल मुझे बोला था ना, ठीक है, ये 0 में था, अब पार्टिकल यहां पर था, सोचो इनिशियली यहां पर ही था, अब पार्टिकल यहां पर आ गया आफ्टर टाइम टी। यहां से जहां से ये पार्टिकल का जर्नी शुरू हो रहा है, तुम्हारा स्टॉप वॉच ऑन कर दो, एट t इक्वल टू 0 में पार्टिकल यहां पर था एंड t इक्वल टू t में पार्टिकल यहां पर आ गया। कितना एंगल स्वीप आउट किया, दिस रेडियस वेक्टर। मैंने कल क्या बोला था, ये कौन सा वेक्टर है भाई, रेडियस वेक्टर। तो कौन सा कितना एंगल क्रिएट किया इसने, थीटा, ये r है, ये r है, ठीक है। सो एक चीज बोलो, यहां से मैं इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखना चाहूं, ये आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ बहुत छोटा है, सोचो ये लगभग स्ट्रेट लाइन के बराबर है, s, दिस s इज व्हाट, ये s कैसे ट्रेवल कर रहा है, ऐसे, दिस वाज ए लीनियर, दिस वन इज ए लीनियर डिस्प्लेसमेंट। मैंने बोला ना ये अगर बहुत छोटा हुआ, ऐसा सोचो, यहां से लेकर यहां से लगभग ऐसे मूव किया बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, तो लगभग ये स्ट्रेट लाइन है समझ में। तो दिस वन इज ए डिस्प्लेसमेंट, व्हिच डिस्प्लेसमेंट इज दिस, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब इसका रिलेशन तुम्हें पता ही होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, बोलो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू r इंटू थीटा, पता है ना, s इज इक्वल्स टू r इंटू थीटा, ठीक है, s इज इक्वल्स टू r इंटू थीटा। तुम यहां पर सर आप तो ये भी पकड़ सकते थे ds एंड d थीटा, यस नो प्रॉब्लम, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल में ये क्या हो जाता ds, और ये एंगल क्या होता d थीटा सर, ठीक है, यहां पर ds यहां पर d थीटा एंड रेडियस इज r। आया समझ में, क्लियर है, ठीक है। मैं वो भी तो बाद में डिस्कस कर रहा हूं, ये अब मैं ये सिंपल तरीके से समझाने का कोशिश कर रहा हूं तुम्हें, जो तुम्हें चीजों को विजुअलाइज हो। तो यहां से इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट सोचो s है, यहां से लेकर ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये s है, ये लगभग ये s है, डिस्प्लेसमेंट है, ये s है, डिस्प्लेसमेंट मींस इनिशियल एंड फाइनल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये s है, ठीक है, समझ में आया, और ये r है। सो इट विल बी s इज इक्वल्स टू r थीटा। अब बोलो यहां से वेलोसिटी कैसे निकालूंगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम से यहां पर डिवाइड कर दो, टाइम से यहां पर डिवाइड कर दो, और टाइम को यहां से डिवाइड कर दो, क्योंकि r थ्रू आउट द जर्नी रिमेन कांस्टेंट, उसका तो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, r थ्रू आउट कांस्टेंट, ओनली थीटा विल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, थीटा का चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, पहले 0 था फिर थीटा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी वेलोसिटी इक्वल टू r इंटू ओमेगा, ये हो गया। तो लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी।
अब फटाफट यहां से बोल दो लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन किससे डिनोट किया जाता है? ए। लीनियर एक्सेलरेशन को किससे डिनोट किया जाता है? ए। एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन? व्हाट यू हैव टू डू? टेल मी बेटा, व्हाट यू हैव टू डू टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द लीनियर एक्सेलरेशन एंड द एंगुलर एक्सेलरेशन? बोलो बेटा, क्या कर सकता हूं हम लोग? लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर, ये तो तुम्हें आना चाहिए बेटा, ये तो तुम्हें सिंपल सा चीज है। तुम्हारे पास लीनियर वेलोसिटी है ना, दिस वन इज लीनियर वेलोसिटी। तुम्हारे पास एंगुलर वेलोसिटी है, दोनों ही है तुम्हारे पास। और टाइम तो तुम्हें पता है, टी। टाइम इंटरवल कितना था? टी, 0 से लेकर, मैंने बोला ना ये दिस वन इज एट टी इक्वल टू 0 आफ्टर टाइम टी इक्वल टू टी। ओके, तो टाइम इंटरवल इज टी, टी माइनस 0 इज टी। तो इसका बेटा एक्सेलरेशन कितना होगा? वेलोसिटी अपॉन टाइम। इनिशियल वेलोसिटी वाज 0, फाइनल वेलोसिटी राइट नाउ इज v। तो क्या हो जाएगा? v माइनस 0 अपॉन टी, तो क्या हो जाएगा? v बाई टी। टाइम से डिवाइड कर दो, और ऐसे ही r इक्वल टू ओमेगा बाई टी। ओके, सो व्हाट यू गेट? v बाई टी a इक्वल टू r इंटू अल्फा। देखो, इसका भी रिलेशन मुझे पता चल गया, a इक्वल टू r इंटू अल्फा। पूरा चीज तुम्हें क्लियर हुआ? ये चीज देखो, v इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और एक्सेलरेशन इक्वल टू रेडियस इंटू व्हाट? रेडियस इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। यू हैव टू रिमेंबर दिस टू रिलेशन। जब तुम्हारे पास ये है, अगर तुम्हें ये निकालना है, रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो। तुम्हारे पास अल्फा है, तुम रेडियस को मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारे पास अल्फा में लीनियर एंगुलर एक्सेलरेशन है, अगर रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो तुम यू विल गेट लीनियर एक्सेलरेशन। जस्ट लाइक द यू हैव एंगुलर वेलोसिटी, व्हेन यू मल्टीप्लाई विद द रेडियस यू विल गेट लीनियर वेलोसिटी। इसमें कोई दिक्कत तो आने वाला नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा जो मैंने तुम्हें बोल रहा था, थोड़ा सा इसको तो मैंने समझ लिया सर, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, थोड़ा सा सर मुझे इसका डायरेक्शन के बारे में बताइए, इसके थ्रू इसका डायरेक्शन के बारे में सर बता दीजिए, ठीक है। तो चलो देखो इसको, ये तो सिंपल इस मैग्नीट्यूड है, मतलब ओमेगा का मैग्नीट्यूड तुम्हें पता है, एंगुलर वेलोसिटी का। रेडियस हो तो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है एक बॉडी, रेडियस अगर पता है उसका पर्टिकुलर उसी पॉइंट में तुम उसका वेलोसिटी निकाल सकते हो, उस इंस्टेंट में, उस पर्टिकुलर पॉइंट में, ठीक है। और ऐसे ही तुम्हें अल्फा पता है किसी एक इंस्टेंट में, उसका रेडियस सर्कुलर पाथ का पता है, तुम एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। सो दीज आर द वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका वेक्टर फॉर्म भी तो सर बताइए, जैसे हम इसका डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो वेक्टर फॉर्म भी बताइए, सब बताऊंगा, वेट करो। अगर मैं ऐसे इससे लिखूं, ऐसे v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, अब सर ये क्या लिख दिया आपने और क्यों लिखा वो भी समझाऊंगा। मैंने ऑलरेडी तुम्हें थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया था, जिसका क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा स्ट्रांग है, ये इसे फील कर पाएगा जब मैं क्या बोलना चाहता हूं। देखो सर आपने ये लिखा, ठीक है, अब ये कब ये होगा वो भी बताऊंगा। देखो मैंने क्या लिखा, पहले क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। ये ए, ये बी, तो ए क्रॉस बी इधर होगा, याद है ना, ये ए है, ए वेक्टर सोचो इधर है, एक वेक्टर बी इधर है, देखो एक वेक्टर बी इधर है और एक वेक्टर ए इधर है, और ए क्रॉस बी, ए इधर बी इधर, तो ए क्रॉस बी, दिस वन इज डायरेक्शन ऑफ द ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा एन हैट, एन हैट उस नॉर्मल जो डायरेक्शन शोन करता है उसका यूनिट वेक्टर। ओके, यही था ना बेटा, यही तो समझाया था मैंने। अब देखो एक बॉडी सोचो ऐसे, इसे थोड़ा सा विजुलाइज करने का कोशिश करते हैं।
इसको इरेज करके इसे 3D में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं तो तुम्हें थोड़ा सा विजुलाइज हो सकता है ये चीज़ के। बेटा सब चीज़ तुम्हें विजुलाइज करना पड़ेगा। ये जो है सोचो ये बॉडी सर्कुलर पाथ में ऐसे मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। ये ऐसे मूव कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे, इस प्लेन के ऊपर नहीं, ऐसे है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऐसे से मूव कर रहा है। ओके, अब फटाफट बोल दो इसका एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन कैसा होगा। सर ऐसे मूव कर रहा है तो सर आपने बताया परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन ऐसा है उसका परपेंडिकुलर इस तरफ होगा, ऐसे होगा ना, ये प्लेन है जिसका परपेंडिकुलर ऐसा होगा। तो सर ये तो एंगुलर वेलोसिटी मुझे सब पता है, ये ऐसा होगा। गलत लिखा होगा ना, आर नहीं, क्या होगा बोलो फटाफट। ये होगा तुम्हारा ओमेगा, ठीक है। इसका रेडियस वेक्टर किस तरफ होगा, इस तरफ होगा सर रेडियस वेक्टर के बारे में थोड़ा सा फील दिला दीजिए। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर, किस तरफ होता है? कल ही बोला था, प्रीवियस क्लास में बोला था, पॉइंट पार्टिकल का जहां पर पोजीशन है, ये पार्टिकल थोड़ा मूव कर रहा है, सोचो ये पार्टिकल सर्कुलर पोजीशन में मूव कर रहा है, तो पार्टिकल का पोजीशन जहां पर है सेंटर से उसके तरफ, ये होगा तुम्हारा रेडियस वेक्टर। बी कॉशियस अबाउट दिस थिंग, डायरेक्शन इस तरफ, ये हो जाएगा तुम्हारा रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन। ओके, और वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? टेंजेंट, ये मूव कर देता हूं। वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर हो जाएगा बेटा, फटाफट बोल दो। टेंजेंट टू द सरफेस, ये अब ये पकड़ लेना, ये इनटू द प्लेन है, समझ में आ रहा है? देखो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे 3D में देखो ऐसे ऐसे कर रहा है, तो इस पॉइंट में वेलोसिटी किस तरफ होगा? इनटू, अंदर की तरफ, इनटू ये v, ओमेगा इस तरफ है ऊपर, v इस तरफ है, समझ रहे हो? v है उस तरफ और ओमेगा है इस तरफ, सीधा ऊपर की तरफ, और v है इस तरफ, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है। समझ में? अब सर अगर मैं ओमेगा क्रॉस r करूं आपके इस रिलेशन से, तो मुझे v आना चाहिए, जरूर आएगा बेटा, करके देखो। ओमेगा किस तरफ था? ऊपर की तरफ, तो ओमेगा की तरफ मैंने अपना ये वाला पोर्शन का हैंड ये यहां से ऐसे कर दिया, और r किस तरफ है? r तो इस तरफ है, तो ओमेगा क्रॉस r, देखो ओमेगा क्रॉस r, ये देखो ये थंब पॉइंट किस तरफ आ रहा है? इनटू द प्लेन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। ओके, क्लियर है ना? क्लियर है ना? दिस वन इनटू द प्लेन, इस तरफ। आई होप दिस होल पार्ट इज क्लियर। अब देखो, अब दिख रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में r और v का बीच का एंगल, ये एंगल कितना डिग्री है? हर एक का बीच का एंगल कितना है? 90 है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। देखो ये और ये तीनों ही परपेंडिकुलर है। देखो ओमेगा r अंदर की तरफ v, दिस थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ओमेगा क्रॉस r, तो ओमेगा r sin 90, एंगल इज 90, एंगल बिटवीन दिस एंड दिस एंगल इज 90, so v equal to sin 90 is 1, that's why v equal to r omega। आया समझ में? इसको अगर sin 90 ले लो, sin को थीटा को अगर 90 ले लो, थीटा इज 90 है, so v it will be r omega। बोलो ये चीज पूरा तरीके से मेरे समझ में आ गया? एंड सिमिलर लाइक दिस वन, a equal to अल्फा क्रॉस r। बट एक चीज बेटा इन वेक्टर फॉर्म, एक चीज बेटा हमेशा याद रखना, ये चीज ये r क्रॉस ओमेगा नहीं होगा। अगर r क्रॉस ओमेगा हो गया सोचो तो डायरेक्शन इधर दे देता, देखो r और ओमेगा इधर होता इस तरह, मगर कहां जा रहा है डायरेक्शन? इनटू द प्लेन, तो इट विल बी ओमेगा क्रॉस r। ये हमेशा याद रखना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि डायरेक्शन का सेंस तैयार करना पड़ेगा तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से। तो ये पूरा चीज तुम्हें क्लियर हो चुका होगा। इसमें आई थिंक तुम्हें कुछ भी डाउट नहीं है, कुछ भी डाउट नहीं है इसमें, पूरा चीज मेरा क्लियर है इसके बारे में, ठीक है? तो रिलेशन याद रखना, ये दोनों रिलेशन, एंड अल्फा का भी डायरेक्शन इस तरफ ही होगा, ठीक है? एंड आर एंड दिस वन सपोज एक्सेलरेशन।
अब ये इंस्टेंटेनियस है, तो तुम लोगों ने शायद इन द केस ऑफ वन डायमेंशनल मोशन तुमने पढ़े होंगे, जब भी हम इंस्टेंटेनियस पकड़ते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन ही मेरा चेंज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। ओके, चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन, क्योंकि बने समझ में, उसी इंस्टेंट में उसका तो वेलोसिटी स्टेट में ही हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन वो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ही होता है। तो इधर ही सोचो, वेलोसिटी का अगर चेंज हो रहा है तो इधर ही ए है, ठीक है, और ये अल्फा है, ठीक है, क्लियर है। वेलोसिटी का चेंज इधर ही होगा, इसी इंस्टेंट में। सोचो ऐसा है तो इंस्टेंट में तो वो चेंज नहीं कर सकता ना, तो तुम वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग से चेंज दिखाओगे, एक्सेलरेशन। ओके, तो इस तरह की चेंज है, ये ए है, ये अल्फा है, सिमिलर थिंग। अब बाकी तुम एंगल देखो, ये सिमिलर है। तो ये है मेरा कॉन्सेप्ट, मुझे कॉन्सेप्ट सही ढंग से आ गया होगा, ठीक है, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट तरफ के जा रहा हूं, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग एंटर कर रहा हूं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और उसके बाद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, बहुत अच्छा। आज तो इसको लेकर हम लोग बहुत सारा डिस्कशन करेंगे, ठीक है, यूनिफॉर्म को लेकर और सेंट्रीपिटल को लेकर बहुत सारा डिस्कशन करेंगे। चलो पहले इसका बेसिक जो कुछ है वो पढ़ लेते हैं। When a particle moves in a circular path such that radius vector makes equal angular displacement in equal interval of time, then the particle is said to be uniform circular motion। बहुत बढ़िया। और एक क्लियर है, देखो, a particle moves in a circular path with a constant speed, it is said to be in uniform circular motion। So when we set a merry-go-round moving with, it should be separate, moving with constant angular velocity, we perform circular motion। So these are the example। तो सबसे तो सिर्फ पढ़ लिया, इसका मीनिंग समझाइए सर। हाँ, मीनिंग समझा दूंगा। यूनिफॉर्म मोशन जब लीनियर वेलोसिटी के लिए मैं कंसिडर कर रहा था, लीनियर मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूं तुम्हें ना, जब तुम एंगुलर वेलोसिटी को पढ़ने का कोशिश करते हो तो तुम्हें लीनियर वेलोसिटी को भी कंसिडर करना आना चाहिए। इससे क्या होगा, चीज़ों को विजुलाइज करना, चीज़ों को समझना तुम्हारे लिए इजी बन जाएगा। जैसे मैं जब सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा रहा हूं, सर्कुलर, तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन भी पढ़े थे, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन उस समय क्या पढ़े थे, देखो याद करो क्या हुआ था। अगर सोचो इसमें इस एक बॉडी है, 2 सेकंड के बाद बॉडी 3 मीटर गया, फिर फर्दर 2 सेकंड के बाद बॉडी 3 मीटर गया, फिर फर्दर 2 सेकंड के बाद बॉडी 3 मीटर गया। मतलब तुम समझ रहे हो ना, इक्वल टाइम इंटरवल में, टाइम इंटरवल कितना है 2 सेकंड, इतना कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इक्वल इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। देखो 3 3 3 इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, 3 3 देन 3 फॉर इक्वल टाइम इंटरवल। तो तुम इसको क्या बोलोगे, व्हिच टाइप ऑफ मोशन इज दिस, यूनिफॉर्म। अब तो कुछ ही नहीं करना है, अब इस चीज को तुम्हें सर्कुलर मोशन में सोचना है। अब सर्कुलर मोशन में तुम शायद डिस्प्लेसमेंट के बारे में नहीं सोचोगे, तुम तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोचोगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। इसमें तुम, यहां पर तुम सीधी सी बात है, वहां पर तुम डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोचते हो, यहां पर तुम एंगल के बारे में सोचते हो। तो ये क्या होगा, बोलो जल्दी से, फटाफट बोल दो, यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा। अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इसने इक्वल एंगल डिस्प्लेस किया तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल हुआ, तो वही तो लिखा हुआ है। सोचो, एक एग्जांपल ले लेता हूं, सबसे बढ़िया होगा तुम्हारे लिए, तुम्हें चीजें समझ में आ जाएंगे अगर एग्जांपल से तुम समझे चीजें को। टेढ़ा मेढ़ा हो गई, इसे थोड़ा सा सही कर लेता हूं तो अच्छा लगेगा। ये ऐसा है। अब देखो, जब सोचो, ये एग्जांपल है, एग्जांपल से हिसाब से सोचिए, रेडियस है, इसके बारे में सोचिए, इसके बारे में सोचना नहीं है। बॉडी यहां पर है, अब
सेम एग्जांपल लेता हूं, सोचो आफ्टर t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 0 यहां से स्टार्ट किया इस जर्नी, आफ्टर t इक्वल टू 2 सेकेंड ये 3 डिग्री एंगल क्रिएट किया, ये 3 डिग्री है, 30 मत लिख रहे ना, 3 है, ठीक है। उसके जैसा ही मैं सिमिलर करने का कोशिश कर रहा हूं तो तुम्हें चीजें समझ में आ जाएगा। ये 3 डिग्री है, ठीक है। फिर आफ्टर 2 सेकेंड, उसके 2 सेकेंड के बाद अगेन इट विल फॉर्म 3 डिग्री, देन 3 डिग्री 2 सेकेंड के इंटरवल में। तो देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 3 3 3 3, टाइम इंटरवल कितना है, 2 2 2। तो which type of motion is this? This motion is a uniform circular motion. This motion is a uniform circular motion. I hope तुम्हें ये पूरा दोनों चीज, अगर और ये भी बोल सकते हो इसका अगर थीटा सेम है तो एंगुलर वेलोसिटी भी और एंगुलर ये स्पीड भी क्या है, कांस्टेंट ही है। अब बोले सर स्पीड कांस्टेंट है, समझ में नहीं आया? हाँ समझो, अभी ये पढ़ा ना v इक्वल टू आर ओमेगा। अब बोलो इसका थीटा सेम है तो ओमेगा का, ओमेगा मतलब क्या तुम समझते हो, बोलो फटाफट। ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी सर है, तो थीटा अगर सेम है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर सेम है, बस 0 से लेकर थीटा 3 डिग्री है, बाई टाइम भी 2, तो 3/2 सोच लो। तो ओमेगा सेम है, आर सेम है, तो इसी किसी इंस्टेंट में हर एक पॉइंट में इसका स्पीड भी क्या हो जाएगा, स्पीड मीन्स ओनली द मैग्नीट्यूड, ओनली द मैग्नीट्यूड। ये जो इसका सोचो 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड थ्रू आउट द जर्नी, यहां पर भी v, यहां पर भी v, यहां पर भी v, यहां पर भी v, इसका मैग्नीट्यूड सेम है, सही है ना? तो ये भी डेफिनेशन मेरा सही है। ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, देन इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब एग्जांपल ले लो, एक बॉडी, तुम एक मेरी गो राउंड में बैठे हो, ठीक है, वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा ये कांस्टेंट है, ठीक है, ओमेगा थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है, इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल टी कवर कर रहा है, तो ओमेगा तो कांस्टेंट होगा क्योंकि ओमेगा इक्वल थीटा बाई टी होता है। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन टी, तो थीटा इज कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए, थीटा कांस्टेंट है, तो ओमेगा कांस्टेंट है, तो तुम उसे क्या करोगे, दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब तुम्हें पूरा चीज समझ में आ गया होगा, ये यूनिफॉर्म, ये समझना बहुत जरूरी है। नाउ गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ ये है तो चीज है, तुम्हें इसे थोड़ा सा फील करना पड़ेगा। इसमें तुम्हें दिस वन इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, हाँ, इसमें तुम्हें जो फैक्टर, तुम्हें जो जरूरत है, कंसेप्चुअल चीज जो जरूरत है, वो प्रीवियस एक चीज हम लोगों ने पढ़ा था, वेक्टर सब्सट्रैक्शन का जरूरत है। किसका जरूरत है, वेक्टर सब। मैं यहां पर सब चीज डिस्कस करूंगा, तुम्हें चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार स्टेटमेंट को हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट इज व्हेन ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड समझ रहे ना, v, इस पॉइंट में v, इस पॉइंट में v, बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, ये भी v, ये भी, मैं बता रहा हूं, देखो इधर देखो, इसको विजुलाइज करो, इस पॉइंट में v1, इस पॉइंट में v2, सोचो v1 इक्वल टू v2 है, तो v1 v2 देन v3 v4, बट इक्वल मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन अलग अलग है, समझा रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी पॉइंट इन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल कंटिन्यूअसली। मैंने जो बोला वेलोसिटी बार बार चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड रिमेन सेम अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, समझे, ठीक है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का रिमेन कांस्टेंट है। द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इंप्लाइज देयर इज सम एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी का चेंज हुआ, वेलोसिटी इट्स कंटेन टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अगर दोनों में से एक भी क्वांटिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन का चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो सॉरी, वेलोसिटी का चेंज हो रहा है तो देयर शुड बी सम एक्सेलरेशन, दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इट डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। इसका डायरेक्शन निकालने के लिए वेक्टर सब्सट्रैक्शन मुझे समझना पड़ेगा।
हाँ, अब तो घिसा पिटा वही चीज है। तो मैं एक चीज पहले समझ लेता हूं, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चीज क्या है। चीजें समझना बहुत जरूरी है। ये सेंट्रीपिटल, उसके बाद हम लोग समझेंगे सेंट्रीफ्यूगल, बहुत सारा चीज के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो देखो, एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जिसका रेडियस है r, कोई इशू नहीं है सर, बहुत अच्छा। अब इसका स्पीड कांस्टेंट है, अभी मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ाया, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एंगल क्रिएट कर रहा है, तो थीटा बाई टी उसका ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। ओमेगा v इक्वल टू क्या है रिलेशन, मैंने पहले ही पढ़ चुका हूं, r इंटू ओमेगा। ओमेगा अगर सेम है, r तो सेम ही होगा, r तो चेंज नहीं होगा, तो ओमेगा इंटू r, अगर r और ओमेगा दोनों ही सेम है तो v भी मतलब एंगुलर वेलोसिटी भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, सॉरी लीनियर वेलोसिटी, मगर उसका मैग्नीट्यूड, दैट्स व्हाई टेकन एज अ स्पीड। इसलिए मैंने बोल रहा हूं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्पीड। स्पीड सेम है, देखो इस पॉइंट में, इस पॉइंट का स्पीड है, ये सोचो v है, इस पॉइंट में ये v है, इस पॉइंट में ये v है, इस पॉइंट में टेंजेंट होता है ना, टेंजेंट टू द सर्कमफेरेंस होता है ना, v है। देखो एक चीज देखो तुम ठीक से, इसका मैग्नीट्यूड सोचो, इस पॉइंट में इसका वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड, इस पॉइंट में भी 3 मीटर पर सेकंड ही है, इस पॉइंट में 3 मीटर पर सेकंड ही है। 3 मीटर पर सेकंड क्या उसका स्पीड, तो स्पीड सेम है, मगर तुम एक चीज देख रहे हो, इसका डायरेक्शन एक बार इधर, एक बार उधर, एक बार इस तरफ, एक बार उस तरफ, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में हो रहा है, एक बार इस साइड, एक बार इस साइड, एक बार इस साइड, एक बार उस साइड। तो एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। चीजें धीरे धीरे समझेंगे। वेक्टर का दो पार्ट होता है, एक है मैग्नीट्यूड, पूरा नहीं लिख रहा हूं, एक है डायरेक्शन। अब देखो इसमें वेलोसिटी तो स्पीड तो कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड इसमें है तुम्हारा बेटा कांस्टेंट। तो मैग्नीट्यूड तो कोई समस्या नहीं है, मैग्नीट्यूड के लिए यहां पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, मगर ये डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर डायरेक्शन का चेंज हो रहा है तो चेंज तो हो रहा है अल्टीमेट, इसका मतलब सॉरी यहां पर एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड होगा किसका, वेलोसिटी का। यहां पर जो स्पीड है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड, स्पीड क्या है, कांस्टेंट, बट स्पीड का क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन। तो स्पीड इसका मतलब क्या है, सॉरी वेलोसिटी का क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ही वेलोसिटी चेंज हो रहा है। और चेंज इन वेलोसिटी प्रोड्यूस चेंज इन वेलोसिटी प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। इस वेलोसिटी के चेंज के लिए क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेलरेशन। ओके, यहां पर मैग्नीट्यूड का चेंज के लिए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, यहां पर डायरेक्शन के चेंज के लिए, तो डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी के लिए होता है, तो दिस इस एक्सेलरेशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर। अब बोला सर ये कैसा पता चला आपको टुवर्ड्स द सेंटर है, टुवर्ड्स द सेंटर कैसे हो सकता है सर, इसका डायरेक्शन वो भी दिखा देते हैं। इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा वेक्टर सब्सट्रैक्शन याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा तुम्हें ओवरव्यू दे देता हूं, तुम्हें थोड़ा सा चीजें धीरे 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 समझ में आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन जस्ट समझने के लिए, एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, इसका बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, v2 माइनस v1 चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक चीज देखो, वेलोसिटी का चेंज जिधर होगा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उधर ही होगा। देखो एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, तो वेलोसिटी का चेंज जिधर होगा, सीधी सी बात है, वेलोसिटी का चेंज जिधर होगा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उधर ही होगा, ठीक है। तो मुझे v2 माइनस v1 अगर मुझे मिल गया तो मुझे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उधर ही होगा जिस तरफ v2 माइनस v1 होगा।
और v2 माइनस v1 निकालने के लिए मुझे भाई क्या चाहिए, वेक्टर सब्सट्रैक्शन। कैसे, देखो देखो ये है q, थोड़ा सा वेक्टर को रिवीजन ले लेते हैं, ये है p, तो ये p ये q है, तो रिजल्टेंट इसका किस तरफ होगा भाई, अकॉर्डिंग टू दिस पैरेललोग्राम लो, दिस विल बी द रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, r, p r इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, p प्लस q लिखते हैं ना, r इक्वल टू बेटा p प्लस q लिखते हैं ना बेटा। अब मैं चाहता हूं q माइनस p करने के लिए, क्या चाहता हूं, q माइनस p चाहता हूं करना। तो तुम क्या करते थे, वेक्टर सब्सट्रैक्शन को याद करो, क्या करते थे, इस p को पीछे की तरफ ले आओ, तो p ये अगर प्लस p है, ये अगर प्लस p है, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा माइनस p। ठीक है, इसके पूरा ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दो लाइन को, ये स्ट्रेट होगा बेटा, स्ट्रेट होगा इसके पूरा लाइन पे। ओके, तो ये p, तो ये क्या हो जाएगा, इस दोनों का डायगोनल, तो r इक्वल टू क्या लिख सकते थे, p प्लस q, इसको क्या लिखते थे, r इक्वल टू इस दिस प्लस दिस p प्लस q, दोनों ही प्लस था, प्लस p प्लस q। ये सोचो r डैश है, तो इसको तुम क्या लिखोगे, r डैश को तुम क्या लिखोगे, p मतलब यहां पर माइनस p है, प्लस q, क्योंकि डायगोनल है ना, डायगोनली रिजल्टेंट होता है ना, तो ये डायगोनल, ये रिजल्टेंट है, ये क्या होगा, दिस प्लस दिस, तो माइनस p प्लस q, माइनस p प्लस q, व्हाट यू गेट, q माइनस p। समझ में आ रहा है क्या करना है, इसे कहते हैं वेक्टर सब्सट्रैक्शन, इसे क्या कहते हैं, वेक्टर सब्सट्रैक्शन। आज समझ में, जिसको माइनस करना है उसको अपोजिट में लेके चले जाओ। अब इसको देखो, इसे देखो, इस पॉइंट में वेलोसिटी दिख रहा है ना, किस तरफ है, ऊपर की तरफ। इस पॉइंट में वेलोसिटी किस तरफ है, ऊपर की तरफ। v2 किस तरफ है, इस तरफ। ठीक है, इधर देख लो, नहीं तो इधर बात मैं आकर समझा रहा हूं। ये v1 ये v2 है, तो इसका अगर तुम प्लस करना चाहो v1 प्लस v2, तो रिजल्टेंट किधर होगा, इस तरफ। इसका r इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी तो सर मैंने पढ़ा, ये दो वेक्टर है, तो क्या हो जाएगा, v2 प्लस सर v1। मुझे एक्सप्रेशन चाहिए, एक्सप्रेशन क्या होता है, v2 प्लस v1 और v2 माइनस v1, कौन सा चीज होता है, v2 माइनस v1, नॉट प्लस। तो मुझे v1 के आगे क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो मुझे अगर ऐसा करूं v2 प्लस माइनस v1, तो मुझे क्या चाहिए, माइनस v1। अब तो बहुत सिंपल हो गया, अगर ये प्लस v1 है, देखो माइनस v1 करने के लिए किस तरफ ले जाना पड़ेगा, उल्टा। अगर ये प्लस v1 है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस v1, प्लस v1 माइनस v1। ठीक है, अब देखो इधर था v2, उसको इसके साथ इसका कंपेयर करो, इधर था v1, मुझे ये लोगा, ये मैं लूंगा, तो क्या हो जाएगा, v2 प्लस v1। मुझे चाहिए v2 माइनस v1, तो ये v1 को किस तरफ ले जाऊं, मैंने अभी दिखाया ना, जिसको माइनस करना है, जैसे इसके लिए p को मुझे माइनस करना था, तो माइनस p क्या था, तो v1 को माइनस करना है, तो माइनस v1 कर दिया। अब बोलो इसका रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, डायगोनल फिर से, तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी फटाफट बोल दो, ये क्या हो जाएगा, ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v2 माइनस v1। अब मैंने क्या पढ़ा, v2 माइनस v1 इज एक्सेलरेशन, तो इसका डायरेक्शन जिधर होगा, ठीक से समझो, इसका डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ, इसका डायरेक्शन जिधर होगा, एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन ही उधर ही होगा ना। देखो, अब देखो, ये इस फिगर में आ जाओ, ये v1 बेटा, ठीक है, पूरा चीज समझ में आ रहा है, ये v2, ये माइनस v1 इस तरफ हो रहा है। देखो ये कौन किसके तरफ हो रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द सेंटर। आज समझ में, व्हिच एक्सेलरेशन इज दिस, व्हिच एक्सेलरेशन इज दिस, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है
वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है। इस पॉइंट में वेलोसिटी v है, v को मैंने v1 लग रहा है लिखा है, इस पॉइंट में भी स्पीड सेम है, स्पीड मैग्नीट्यूड, इस पॉइंट में भी मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब यहां पर भी 3 मीटर है, यहां पर भी 3 मीटर है पर सेकेंड है, मगर इस तरफ डायरेक्शन उधर था, इस तरफ डायरेक्शन इधर था, तो डायरेक्शन का चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है। सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होने से वेलोसिटी चेंज नहीं होता, डायरेक्शन चेंज होने से भी वेलोसिटी का चेंज होता है। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, जिस तरह वेलोसिटी का चेंज हो रहा होगा उस तरह मुझे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का चेंज मिलता है, मुझे क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी का चेंज मैंने देखा किस तरफ हो रहा है, टुवर्ड्स द बेटा सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर हो रहा है। तो अगर वेलोसिटी का चेंज का डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर है बाय यूजिंग वेक्टर सब्सट्रैक्शन, मैंने वेक्टर सब्सट्रैक्शन को यूज करके मैंने वेलोसिटी का चेंज का डायरेक्शन निकाल लिया, तो उसी तरफ तो है, किसका डायरेक्शन होगा बेटा, उसी तरफ मेरा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज, व्हिच एक्सेलरेशन इज दिस, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अब एक क्वेश्चन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन सा मोशन के लिए होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए होता है। क्यों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल रहे हो, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में याद करो यहां पर स्पीड का चेंज नहीं होता, स्पीड वेलोसिटी का तो डायरेक्शन का चेंज तो हो ही सकता है, मगर स्पीड इस पॉइंट में जितना था इस पॉइंट में भी उतना ही है, 3, सोचिए इस पॉइंट में 3 था, इस पॉइंट में 3 था, इस पॉइंट में 3 था, मगर देखो डायरेक्शन का चेंज हो रहा है। अब जब डायरेक्शन का चेंज होगा तब भी तुम्हारा एक एक्सेलरेशन काम करेगा, किस तरफ, वो एक्सेलरेशन किस तरफ काम करेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। वही एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका मतलब एक बॉडी, एक पार्टिकल अगर कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से, तब भी उसका एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा। दिस एक्सेलरेशन इज बेसिकली नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किस तरफ होगा, जिस तरफ चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। ठीक है, पूरा चीज क्लियर हो गया, रिलेशन सब कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, तो अभी तक के लिए यही है। नेक्स्ट दिन मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो हो गया मेरा, अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तरफ मूव करेंगे, उसमें तो एक्स्ट्रा एक एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन आया तो फोर्स भी आएगा, तो नेक्स्ट दिन हम लोग फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट दिन एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, so this is all about the concept of the uniform circular motion and the centripetal acceleration. So thank you, have a nice day.